Students, let's see applications of circular motion, right? Let's say car is moving on a concave bridge of radius r, right? Let's take example. When a car moves, right? When a car moves on a concave bridge of radius r. Okay, students. You know about concave. Let the surface is like this. It's having a radius. Let the radius is r. Let at any point I will be seeing the car is moving like this. Okay. So students, you always know weight of the body is always mg downward, correct? So let the car is at a position of theta with the vertical, yes or no? And you can say tangential it is having some velocity. And if mg is in this direction, if I'll take this one, then this is going to be theta also, you know. And this is going to be mg cos theta. And the component that will be acting along this is how much? Mg sin theta. And the normal force acts perpendicular to the surface in contact. In this direction, the normal force will act. So normal force is acting in this direction. Mg cos theta is acting in this direction. And the net centripetal force will be acting. Centripetal centered seeking, that is mv square by r always. So you can write centripetal force, right? In this case, the centripetal force is equal to n minus mg cos theta, that is equal to mv square by r. है ना? Next, you can find normal reaction. Next, write normal reaction. If you want to find only normal reaction, then you take other side to other side, then write normal reaction is equal to n is equal to mg cos theta plus mv square by r. This is what normal reaction. All got this point? Abhinav, Subham, Trishti? Yes. Okay. Next, let's go when a car moves in a convex bridge. ठीक है? Bulging out, bulging in. Next, right? When a car moves, second point पे लिखो, when a car moves on a convex bridge, moves on a convex bridge of radius r. ठीक है? फ्रेंड, दिस इज लाइक कन्वेक्स ब्रिज, ठीक है? इसका रेडियस मान के चलो r है, तो कोई भी एक पॉइंट पे अगर व्हीकल खड़ा है, ठीक है, so like this it is also making, let the vehicle at the position, we're making an angle theta with this, right? And this is going vertically downward, that is mg, correct? And you know normal reaction acts like this, perpendicular to the surface in contact. And if this is theta, this is going to be theta, then here mg cos theta will be acting in downward direction. Yes or no, students? Along this component, mg cos theta is going to act. Sisti, are you writing? Subham and Purab, both of you writing or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is mg cos theta, and this component is going to be mg sin theta. Already we have resolved many components in many cases, right? So here if I will be saying centripetal force, then the consequence will be different because the direction is changing, right? Centripetal force, that is equal to mg cos theta minus n is equal to mb square by r, है ना? और अगर यहाँ पर हम नॉर्मल केस निकालना चाहें तो n is equal to how much? mg cos theta minus mb square by r. Okay. Yes. So let's take another example. Let a ball of mass m is suspended vertically by a string. ठीक है, एक string है जो कि सेंटर से ऐसे लटक रहा है, राइट? तो ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, राइट, है ना?
लेट दिस इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यस और नो, और ये उसका मेन पोजीशन है मान के चलो। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अगर हम सर्किल को, मैं थोड़ा इसको इस तरह ले लेता हूँ, राइट। बॉल ऑफ मास m सस्पेंडेड वर्टिकली बाय स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ l दिया हुआ है। ए बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से मैंने एक बुलेट को फायर किया हॉरिजॉन्टली जिसका मास स्मॉल m है, राइट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, and with a velocity u, correct, onto the ball, and the bullet goes and sticks, yes or no, bullet sticks to the ball, right, bullet goes and bullet sticks to the ball, है ना स्टूडेंट्स। तो फॉर द सिस्टम टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल द मिनिमम वैल्यू, मैं यहाँ से u का वैल्यू कितना दे दूं, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ u, सो दैट यहाँ पर बुलेट जाके टक्कर, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, मास m जो है वो तो रेस्ट पे है, जो ये मूव करेगा उसको काइनेटिक एनर्जी ये बुलेट देने वाला है, तो बुलेट की मास तो फिक्स है ना बेटा, तो ये u जो है, u कितना होगा तभी जाके ये पूरा एक सर्कुलर मोशन कवर कर लेगा, राइट। सो राइट द क्वेश्चन, for the system to complete the vertical circle, right, for the system to complete, for the system to complete the vertical circle, the minimum value of u, the minimum value of u, the minimum value of u is given by how much? Student, how much should be the minimum value of u? अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि जब हम पहले जब हम सर्कुलर मोशन के साथ डील कर रहे थे, तो ऑलरेडी हम ये देख चुके थे कि यहाँ पर u कितना हो, what should be the velocity at this point, so that ये एक वर्टिकल सर्किट कंप्लीट करेगा, राइट, ये सर नो, एंड दैट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितना होना होगा स्टूडेंट्स, पूरा सर्कल मूव करने के लिए अगर यहाँ तक मैं बात करूँ तो कितना होगा स्टूडेंट्स, v इज इक्वल रूट अंडर 5gl होता है कि नहीं, नॉर्मल, याद है ना, what should be the velocity at this point so that it will complete a circle, yes sir no, क्या था वो velocity, रूट अंडर 5gl हम डिराइव किए थे, डू रिमेम्बर और नॉट, देखो इससे पहले 2 लेक्चर को जाके देखो, आप समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बुलेट की एनर्जी है वो क्या है स्टूडेंट्स, mu स्क्वायर है ना, Yes, sir. बट अभी तो ये जो मास m था, थोड़ी देर में ये मास कितने होने वाला है, दिस मास m प्लस m हो जाएगा ना, यस सर नो, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स, मतलब बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी था हाफ mu स्क्वायर जो था, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पर अगर पहुंचेगा तो वो कितना एनर्जी हो जाएगा, दोनों का मास कितना है, m प्लस m हो जाएगा वहां पर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी m2gh, अगर हम पूरी तरह से दोनों को सॉल्व करें, अगर दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करें और हम मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे निकाल ले, जैसे हम निकाले थे कि कितना आया था, रूट अंडर 5gl आया था, रूट अंडर 5gl को जैसे डिराइव किए थे हमने लेके, तो उस तरह अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली विल बी गेटिंग दैट u इज इक्वल टू टोटल मास बाय मास ऑफ द बुलेट इनटू 5gl, करेक्ट, क्योंकि पहले जो मास था वो नॉर्मल हमारा मास था क्या, दैट इज v हाफ m u स्क्वायर और हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर को हम रिप्लेस करके इसको निकाले, हम इसको डिराइव करके आराम से निकाल सकते हैं, राइट, जस्ट नोट इट, थोड़ा डिराइव करके आप इसको चेक करो, नहीं तो फिर मुझे पूछो, राइट, क्योंकि अगर आप नहीं समझे होंगे पहले 2 लेक्चर्स की कैसे आया था रूट अंडर 5gl बॉटम पॉइंट वेलोसिटी, तो ये भी समझ पे नहीं आएगा, बस इतना चेंजेस हम किए हैं कि वहां पर मास नॉर्मल m था, अभी जब बुलेट उसके अंदर जाके चिपक जाने से टोटल मास कितना हो जा रहा है, m प्लस m हो जा रहा है, राइट, जस्ट नोट इट। देखो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ पे नहीं आ रहा है फिर भी और एक बार बता दे रहा हूँ, जस्ट आप देखो, मान के चलो यहाँ पर जब, चलो एक नॉर्मल केस ले लेता हूँ सो दैट आपको पूरा चीज और एक बार याद आ जाएगा। फ्रेंड्स देखो ये मैं बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट की बात कर रहा हूँ,
जब यहाँ पर था बल्ब, ये सेंटर है मेरा, ठीक है, लेंथ एल ले लो, ये भी लेंथ एल ले लो। सो जब यहाँ पर था, मान के चलो वेलोसिटी था, वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है, ये बॉटम पॉइंट है ना, और यहाँ पर जब था तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी ले लो, वी टॉप, करेक्ट। और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी बी स्क्वायर था ना, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है स्टूडेंट्स, हाफ एम वी टॉप का स्क्वायर। समझ पे आ रहा है कि नहीं। और जब इस पॉइंट पे था तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो था ना ग्राउंड लेवल पे, और जब यहाँ पर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। एंड व्हाट इज दैट पोटेंशियल एनर्जी, एम इंटू जी इंटू एक्स। एक्स मतलब कितना लेंगे, एल प्लस एल, 2L डिस्टेंस चला गया है ना। यहाँ पर जो काइनेटिक टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, और नो पॉइंट टॉप पॉइंट और नॉट बॉटम पॉइंट में जो एनर्जी होगा और टॉप पॉइंट में वही एनर्जी होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर नीचे में पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, ऊपर में अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बन जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा ना स्टूडेंट्स। Yes, sir. सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, अगर एनर्जी बैलेंस मेथड की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is going to be gain in gravitational potential energy. Loss in kinetic energy is going to be gain in gravitational potential energy. So that is equal to half m vb square minus half m velocity at top point का square is equal to gain in gravitational potential energy. Correct? That is how much, m g 2l। हर जगह से m को कैंसिल कर दो और हाफ हाफ को लेके उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ यहाँ से कॉमन, मतलब अगर मैं m कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम वी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर, 2 कॉमन लेके जाके उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया तो 4gl हो जाएगा कि नहीं, है ना स्टूडेंट्स। एंड वी Yes, sir. टू बी हाउ मच, वी टी स्क्वायर प्लस 4gl, करेक्ट है ना, है कि नहीं। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो वी बी मिनिमम इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर मिनिमम plus 4gl, correct. So that is equal to root over of 5gl, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। याद आ रहा है कि नहीं, मिनिमम पॉइंट की वेलोसिटी, टॉप पॉइंट की वीटी का वेलोसिटी याद आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। देखो फिर उसको, नहीं तो फिर बताता हूँ, अगर शायद आप नहीं देखे लेक्चर्स, और एक बार वो सारे लेक्चर्स देखो, ठीक है, जस्ट टू सी ऑल द लेक्चर्स। स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इस तरह की, मतलब वही उसकी मैं बात कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर इस पॉइंट की बात करूँ, मैंने बताया था आपको पहले से, वेट भी नीचे की तरफ था mg, करेक्ट ना, और टेंशन भी नीचे की तरफ था ना स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं। और सेंटर की तरफ क्या फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान के चलो vt है। तो अगर अगर ये सेंटर है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम वी टी का स्क्वायर बाई एल हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो टी और एम जी नीचे की तरफ है तो क्या हम लिख सकते हैं, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी टी स्क्वायर बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं। सो दैट टी इज इक्वल टू हाउ मच, एम वी टी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, करेक्ट ना स्टूडेंट्स। Yes, sir. एंड टेंशन इज मिनिमम एट द टॉप, क्योंकि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वहां पर टेंशन कम हो जाएगा ना। तो मिनिमम मतलब अगर मैं उसको जीरो के साथ आठ, मतलब टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दैट इज जीरो। दैट मीन्स एम वी टी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर एम एम कैंसिल कर दे तो आप देख सकते हो velocity at the top is going to be how much, greater than equal to lg. So what is the minimum critical velocity at the top, what is the minimum critical velocity at the top, root under gl ना स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं। Yes, sir. और उसी वैल्यू को लेके हमने यहाँ पर पुट किया, करेक्ट। ये जो हमने निकाले ना, रूट अंडर 4gl था और gl की gl कर दिया हमने, तो रूट अंडर 5gl हो गया। ये वाला चीज समझ पे आ रहा है कि नहीं।
Students getting na?